Hello students, today we will start our first session of economics. Your total course of economics is divided into two parts. Part A, macroeconomics 40 marks and part B, Indian economic development 40 marks. Out of this 40 marks, 10 marks is given to the first unit, which is very important. So today we will start with the first unit, chapter 2, basic concepts of macroeconomics. Before starting this, I just want to tell you that these 10 marks can be given in the form of 1 mark question, 3 marks, 4 marks or 6 marks. This 6 marks question definitely will cover a numerical part. To solve this numerical part, definitely which is related to the measurement of national income, we have to be very clear about the basic concepts of macroeconomics. To start with the chapter 2, basic concepts of macroeconomics, the first concept we will take is of goods. As you can see in the economy, there are countless goods. For example, shoes, shirts, flour, bread, machines, tools, aircrafts, defense goods, etc. There are countless and variety of goods. To understand the goods in economics, these are classified into two major categories. First category is final goods and intermediate goods, and the second category would be capital goods and consumer goods. Capital and consumer goods we will try to understand in the next session. This section will cover the final goods and intermediate goods. We will try to know the difference between the final goods and intermediate goods and the related examples of it. So, the first is final good. What are final goods? Final goods are those goods which have crossed the boundary line of production. What does this mean? If a good has crossed the boundary line of production, it means it is out of the production process. No further value is now left to be added in it, and so they are ready to use by their final users. Again, who are the final users? They are consumers or producers. These final goods can be used or purchased by consumer either or producer. On the basis of these two, the final goods is again classified into final consumer goods and final producer goods. As far as concerned with final consumer goods, we can take example of milk. Consumers generally purchase the things for the satisfaction of their wants directly. So, milk purchased by households. Households would be considered the final good. If the milk is purchased by household, then this milk would be considered final consumer good. So, there is a next question. Then if the milk is purchased by a sweet shop or by a factory for further production of sweets or in a bakery or other workshops, other areas, then this would be considered as an intermediate good, because this milk would be processed and it will convert it into some other form of final good. That's why if the milk is purchased by household, then this would be considered final consumer good. Otherwise, it would be, if it is purchased by a shopkeeper, then this called maybe for resale or for manufacturing or for producing sweets, and that would be come under the intermediate goods. So we will discuss it about later. Final and the other second category is final producer goods. Now, final producer goods are those goods which are purchased by producers for further production of their product, like machines. Machines are purchased by the producers in a factory to give or to add value to the intermediate goods, like raw material. Cloth is converted into or transformed into garments. Then garment would be the final product and cloth would be intermediate. Machines we have taken, and in farming sector we can see them, there would be tractors, threshers, harvesters. These all machines are used in the process, in the production of further commodities like crops, wheats and all. So
The major classification of final goods are final consumer goods and final producer goods. So now we will go to the second concept of intermediate goods. Intermediate goods are those goods which have not crossed the boundary line of production. It means they are under production process. Value is still to be added in it, and they are not ready for by their final users. The examples we will take in it are raw materials in a factory, like cloth I have given the example, or goods purchased for resale, like shirts purchased by firm Y from firm X. In this, firm Y is a retailer and X is a wholesaler. If retailer is purchasing something from wholesaler, definitely he will add some amount of profit in the total value. That profit is added. This is what we call value addition. Suppose if 100 shirts are purchased at the cost of 900 each, then the total costing for the retailer would be 9,000, and he will add his profit margin 1,000 in it, and the total market value of the shirts would be 10,000. Then this is now the final value, and no further value is added. So this 10,000 would be considered as a final, but 9,000 till 9,000 this shirt will be considered the intermediate goods. Moreover, we cannot judge any good, or we cannot categorize any good under the category of final and intermediate. We have to see the end use. Any good can be final or intermediate. Yes, any good can be considered or come under the category of final good or intermediate good. How we will differentiate? We will see the end use. We will see the end use of the product. If the milk is purchased, like in say by the household, then this is the final good, final consumer good. But if the milk is purchased by a shopkeeper for resale, then it would be intermediate good. Likewise, a refrigerator. If a refrigerator is purchased by a household, then it would be a final good, final consumer good in fact. And if it is final consumer good, and if it is purchased by a shopkeeper, then it would be a final producer good. And what would be intermediate good? If the same refrigerator is purchased by the shopkeeper for further sale, then it would come under intermediate good. He will definitely add some profit margin and then he will sell it. And as far as refrigerator purchased by the household, it is final consumer good. And if it is purchased by a restaurant to keep the products like cold drinks and all, then this would be considered under final producer good. So we have understood the topic, final goods and intermediate goods. Let's do revise it in a short form. Like final goods are those goods which have crossed the boundary line of production and value are no further be added in it. They are ready to use by their final users. Final users are classified into two, consumers and producer goods. Likewise, these goods are classified into final consumer goods and final producer good. Example is milk purchased by a household, and final producer goods are the machines for productions and tractors for farming. These are also called fixed assets of the firm. These are also called the fixed assets of the firm. Now, intermediate goods are those still which are under the boundary line of production. They haven't crossed the production process and value is still to be added in it. How do I make my students remember this, remember these two are? If the good is a raw material or if the good is purchased for resale, then these two are will definitely make the good intermediate goods. We have taken an example of shirts. We can take the example of the LEDs,
We can take the example of fridge, washing machine. All these items are purchased by the retailer from the wholesaler for further sale. So definitely he is adding some value in it and then he is selling to the consumer. So these goods, all the electronic goods, if they are purchased for resale, then these are called the intermediate good, until and unless he added the profit margin of his in that. I think this topic is very clear to you. बस इतना याद रखना है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स का एंड यूज देख करके हमको उसको डिवाइड करना है. कोई सा भी गुड, एक गुड फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है. उसके लिए भी हमने एक एग्जांपल आपको दिया है, जैसे मिल्क अगर हाउस होल्ड परचेज करता है तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड है. अगर वो कोई शॉपकीपर या स्वीट शॉप परचेज कर रहा है तो वो है इंटरमीडिएट गुड. गॉट इट? फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन स्वीट्स. थैंक यू. Now we will see the difference between intermediate goods and final goods in the form of T chart. Intermediate goods are those goods which remain within the boundary line of production and which are not ready for use by their final users, while final goods are those goods which are outside the boundary line of production and actually they are ready for the final consumption. These goods are used as raw material for the production of other goods during an accounting year. ये गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि रॉ मटेरियल की तरह यूज़ में आते हैं, जिनकी वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू में इंक्लूडेड होती है, इसीलिए इसे इंटरमीडिएट गुड्स भी बोलते हैं. दी फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर not used as raw material for the production of other goods. So they can be used as a raw material and they cannot be used as a raw material. Next, the third point of difference is these goods may be resold by the firm for profit during the accounting year. These goods इनको resold किया जा सकता है profit के लिए, and these goods are not resold by the firm for profit during the accounting year. वैल्यू इज़ येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स. जैसे एक क्लोथ से हम फैब्रिक बना रहे हैं और उस फैब्रिक को होलसेलर ने लिया, होलसेलर ने परचेज़ किया और होलसेलर से रिटेलर ने परचेज़ किया, तब तक वो अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे और इसलिए वो गुड क्या कहलाएगा कि द वैल्यू इज़ येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स. और जैसे ही वो रिटेलर कस्टमर को सेल करेगा तो फिर वो जो वैल्यू होगी वो फाइनल प्रोडक्ट वैल्यू होगी. Until the goods are with wholesalers, these goods would be considered as intermediate, and the value is not to be added to these goods. वही रिटेलर से जब कस्टमर को जा रहा है, जब तक होलसेलर तक है तब तक वो इंटरमीडिएट है. एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर. गॉट इट? This is C plus I, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. फाइनल एक्सपेंडिचर में जब हम आगे की यूनिट पढ़ेंगे तब एक्सपेंडिचर में दो तरह के एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर while calculating the national income. These goods are not included in the estimation of national product and these goods are included. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसे आपको याद रखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं. फाइनल प्रोडक्ट और फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही नेशनल इनकम के मेजरमेंट में इंक्लूड करते हैं. क्यों? क्योंकि फाइनल गुड्स के वैल्यू में इंटरमीडिएट की वैल्यू इंक्लूडेड है. ऑब्वियसली फाइनल प्रोडक्ट जो भी होगा उसमें रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग आएगी. तो रिटेलर जो भी शर्ट बेच रहा है कस्टमर को, उसके अंदर होलसेलर तक का मार्जिन इंक्लूडेड हिज मार्जिन ऑल्सो, वो सब कवर अप है. तो डबल काउंटिंग नहीं हो जाए, इस वजह से हम इंटरमीडिएट की वैल्यू को हटा देते हैं. तो जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो हम टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट जो भी निकलता है, जो कि जैसे आपने 100 यूनिट्स बेची 100 रुपीज़ में तो हो गए 10,000, इसमें से इंटरमीडिएट अगर 5,000 दे रखा है तो वो माइनस होगा, उसके बाद ही फाइनल इंक्लूड होगा. गॉट इट? अगर हम 5,000, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि 10,000 है, उसमें से हमने 5,000 हटा लिए
इंटरमीडिएट गुड्स के, तो फिर 5000 ही बचे। अब 5000 अगर हम पूरा ही फाइनल 10 ले लेते 10,000 और इंटरमीडिएट की वैल्यू को भी ले लेते तो फिर वो 15 हो जाता, जो कि डबल काउंटिंग में कंसिडर होता, जो कि सही मेज़र नहीं है नेशनल इनकम का, क्योंकि फाइनल गुड्स के वैल्यू में इंटरमीडिएट की वैल्यू इंक्लूडेड है। ऑब्वियसली फाइनल प्रोडक्ट जो भी होगा उसमें रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग आएगी। तो रिटेलर जो भी शर्ट बेच रहा है कस्टमर को, उसके अंदर होलसेलर तक का मार्जिन इंक्लूडेड हिज मार्जिन ऑल्सो, वो सब कवर अप है। तो डबल काउंटिंग नहीं हो जाए, इस वजह से हम इंटरमीडिएट की वैल्यू को हटा देते हैं। तो जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो हम टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट जो भी निकलता है, जो कि जैसे आपने 100 यूनिट्स बेची 100 रुपीज़ में, तो हो गए 10,000, इसमें से इंटरमीडिएट अगर 5000 दे रखा है तो वो माइनस होगा, उसके बाद ही फाइनल इंक्लूड होगा। गॉट इट? अगर हम 5000, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि 10,000 है, उसमें से हमने 5000 हटा लिए इंटरमीडिएट गुड्स के, तो फिर 5000 ही बचे। अब 5000 अगर हम पूरा ही फाइनल 10 ले लेते 10,000 और इंटरमीडिएट की वैल्यू को भी ले लेते तो फिर वो 15 हो जाता, जो कि डबल काउंटिंग में कंसिडर होता, जो कि सही मेज़र नहीं है नेशनल इनकम का। टाइप्स ऑफ गुड्स, इसमें हमने इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का डिफरेंस समझा। नाउ द सेकंड टाइप इज़ कंज्यूमर गुड्स एंड द कैपिटल गुड्स, जो कि नेक्स्ट पेज पे है। तो डिफरेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंज्यूमर गुड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स. Got it? These are those goods which are directly used for the satisfaction of human wants, like ice cream, like milk, butter. These goods are consumed by the households when purchased. So consumption goods भी 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहला है ड्यूरेबल गुड्स, सेकंड है सेमी ड्यूरेबल, थर्ड नॉन ड्यूरेबल एंड फोर्थ इज़ नॉन मटेरियल गुड्स, जिसको हम सर्विसेज भी बोलते हैं। नॉन मटेरियल गुड्स, वी नो सर्विसेज लाइक डॉक्टर, लाइक लॉयर, टीचर, ये सब सर्विसेज में आते हैं। तो कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स जो कि कंज्यूमर अपने डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के लिए परचेज करता है, उसको हम कंज्यूमर और कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं। सबसे पहले आते हैं ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जिन्हें हम काफ़ी सालों तक यूज़ कर सकें, विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। 2 चीज़ें आपको इसमें ज़्यादा फोकस करवानी है। वो ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स हैं जो कि काफ़ी सालों तक चलते हैं और जिनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे आप टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, दे ऑल आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स. Now the second type is semi-durable consumption goods. Semi-durable consumption goods are those which can be used for a period of year. 1 साल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, slightly more. Not for several years. For a year or a slightly days or months more. These goods are not yet of very high value. इसलिए इनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे हमारे क्लोथ्स हुए, साल भर से के आसपास हम उसको चेंज कर लेते हैं। फर्नीचर हुआ, कुछ फर्नीचर होते हैं जो कि हम साल भर के अंदर चेंज कर लेते हैं। क्रॉकरी, इलेक्ट्रिक गुड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल में 2 ही चीज़ें याद रखनी है, जो साल भर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा चले और जिनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, और आपको एग्जांपल्स हैं जैसे क्रॉकरी, इलेक्ट्रिक गुड्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा। थर्ड इज़ नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंजम्पशन। हमें सिंगल यूज़ कंजम्पशन मतलब कि परचेज़ किया, कंज्यूम किया और ना अब वो यूज़ अप हो गया, आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मिल्क हुआ, जैसे ब्रेड है, ये सिंगल कंजम्पशन गुड है। आपने कोई ये आपके सालों तक नहीं चलने वाले या साल भर भी नहीं चलने वाले। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, अभी डेफिनेशन देखते हैं, आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल दे दिए आपको एग्जाम्पल, लाइक डोमेस्टिक LPG, इंक, मिल्क, पेट्रोल, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ड्यूरेबल। दे आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। हमने कंज्यूम कर लिया और वो फिनिश अप हो गए। सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स। याद रखना, सर्विसेज आर नॉन मटेरियल गुड्स, वी कैन टच देम, दे आर नॉन मटेरियलिस्टिक, विच डायरेक्टली satisfy human wants, like services of doctor, lawyer, domestic servant also included in this. The next is capital goods. तो वी हैव टू शो द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड कंज्यूमर और कंजम्पशन गुड्स की 4 कैटेगरीज हमने देख लिया।
These are the four categories: durable, semi-durable, non-durable, non-material goods or services. Now the next is capital goods. Capital goods are fixed assets of the producers. समझ में आया? कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स. ये प्रोड्यूसर्स के फिक्स्ड एसेट्स हैं. फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? प्लांट एंड मशीनरी जैसे. ठीक है. These goods are used by producers either for replacement of the capital stock or for addition to the capital stock. Replacement के capital stock की मतलब जितना भी उसके पास plant and machinery है, जितनी भी machines हैं, उन सबको या तो वो replace करेगा या फिर उनमें एडिशन करेगा. उसको और मशीन्स की ज़रूरत है. इन दो वजहों से प्रोड्यूसर इन्हें खरीदता है. As fixed assets, capital goods are repeatedly used in the process of production for several years. आपने एक राउंड ऑफ प्रोडक्शन किया तो उसमें वो कंज्यूम नहीं हो गए, वो मोर राउंड्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज़ होंगे. एक मशीन से आप बहुत सारे प्रोडक्शन करते हैं, बहुत सालों तक प्रोडक्शन करते हैं, तो ये रिपीटेडली यूज़ होते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काफ़ी सालों के लिए और काफ़ी हाई वैल्यू के होते हैं. इवन नट्स एंड बोल्ट्स एंड नेल्स और स्क्रूज आर यूज फॉर सेवरल ईयर्स. तो क्वेश्चन कई बार बच्चे पूछते हैं कि अगर हाई वैल्यू है तो इसमें बच्चे ये पूछते हैं नट्स एंड बोल्ट्स अगर हैं तो नेल्स एंड स्क्रूज तो ये भी तो बहुत सालों तक चलते हैं, तो इन्हें कैपिटल गुड्स बोलते हैं. क्या इन्हें कैपिटल गुड्स नहीं बोलते हैं? बिकॉज दे आर ऑफ लो वैल्यू. सिर्फ किसकी वजह से? क्योंकि उनकी वैल्यू क्या है? लो है. अगर उनकी वैल्यू हाई होती तो फिर वो किस में आ जाते हैं? फिक्स्ड एसेट्स में आ जाते हैं. क्योंकि ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए प्रोड्यूसर्स को कैपिटल की ज़रूरत होती है और उस कैपिटल को कवर अप करने के लिए उसे काफ़ी सालों तक प्रोडक्शन करना पड़ता है. ठीक है. लेकिन इसके अंदर वो सालों तक चल तो रहे हैं लेकिन उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है. दैट्स वाई नट्स, बोल्ट्स, नेल्स एंड स्क्रूज ऑल्दो दे रन फॉर सेवरल ईयर्स बट दे डू नॉट हैव हाई वैल्यू. दैट्स वाई दे विल नॉट कंसिडर्ड अंडर कैपिटल गुड्स. Thus, only those fixed assets of the producers are taken as capital goods which are used in the process of production for several years and which are of high value. Several years and which are of high value. अगर इस तरह के goods हैं तो ही वो capital goods कहलाएंगे. Got it? अब कैपिटल गुड्स हैं, अगर हर साल वो यूज़ हो रहे हैं तो उनमें कुछ डेप्रिसिएशन भी हो रहा होगा, तो डेफिनेटली दे फेसेस डेप्रिसिएशन. और ये होता क्या है? ये लॉस ऑफ वैल्यू होती है फिक्स्ड एसेट्स की. जैसे आज हमने मशीनरी ख़रीदी है तो अगर नेक्स्ट ईयर हम उसे बेचेंगे तो ऑब्वियसली हमें उतना रेट नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा. ये इस वजह से होता है कि जब हमने उसे यूज़ किया तो उस टाइम पे कुछ वियर एंड टियर हुए, उसके यूजेस की वजह से उसकी वैल्यू में जो डाउनफॉल आता है उसे हम डेप्रिसिएशन के स्लॉट में मेज़र करते हैं. तो कैपिटल गुड्स क्या हैं? कैपिटल गुड्स फिक्स्ड एसेट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स के, हाई वैल्यू के होते हैं और सेवरल ईयर्स तक चलते हैं. क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? कैपिटल गुड्स फिक्स्ड एसेट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स के, दे एक्चुअली यूज फॉर सेवरल ईयर्स. फिक्स्ड एसेट्स यूज फॉर several years and are of high value. Got it? And they also leads to depreciation, and example are this. So 5 things you have to focus on this. Those goods which are used up in a single act of consumption. For example, दे दिया आपको example like domestic LPG, ink, milk, petrol. All these are examples of non-durable. They are used up in a single act of consumption. हमने कंज्यूम कर लिया और वो फिनिश अप हो गए. सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स. याद रखना, सर्विसेज आर नॉन मटेरियल गुड्स. वी कैन टच देम. दे आर नॉन मटेरियलिस्टिक which directly satisfy human wants, like services of doctor, lawyer, domestic servant also included in this. The next is capital goods. तो वी हैव टू शो द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड कंज्यूमर और कंजम्पशन गुड्स की 4 कैटेगरीज हमने देख लिया. दीज आर द 4 कैटेगरीज: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज. नाउ द नेक्स्ट इज कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स. समझ में आया? कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स. ये प्रोड्यूसर्स के फिक्स्ड एसेट्स हैं. फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? प्लांट एंड मशीनरी जैसे. ठीक है.
These goods are used by producers either for replacement of the capital stock और for addition to the capital stock. Replacement के capital stock की मतलब जितना भी उसके पास plant and machinery है, जितनी भी machines हैं, उन सबको या तो वो replace करेगा या फिर उनमें एडिशन करेगा, उसको और मशीन्स की ज़रूरत है. इन दो वजहों से प्रोड्यूसर इन्हें ख़रीदता है. As fixed assets, capital goods are repeatedly used in the process of production for several years. आपने एक राउंड ऑफ प्रोडक्शन किया तो उसमें वो कंज्यूम नहीं हो गए, वो मोर राउंड्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज़ होंगे. एक मशीन से आप बहुत सारे प्रोडक्शन करते हैं, बहुत सालों तक प्रोडक्शन करते हैं, तो ये रिपीटेडली यूज़ होते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काफ़ी सालों के लिए और काफ़ी हाई वैल्यू के होते हैं. इवन नट्स एंड बोल्ट्स एंड नेल्स और स्क्रूज आर यूज फॉर सेवरल ईयर्स. तो क्वेश्चन कई बार बच्चे पूछते हैं कि अगर हाई वैल्यू है तो इसमें बच्चे ये पूछते हैं नट्स एंड बोल्ट्स अगर हैं तो नेल्स एंड स्क्रूज तो ये भी तो बहुत सालों तक चलते हैं, तो इन्हें कैपिटल गुड्स बोलते हैं. क्या इन्हें कैपिटल गुड्स नहीं बोलते हैं? बिकॉज दे आर ऑफ लो वैल्यू. सिर्फ किसकी वजह से? क्योंकि उनकी वैल्यू क्या है? लो है. अगर उनकी वैल्यू हाई होती तो फिर वो किस में आ जाते हैं? फिक्स्ड एसेट्स में आ जाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए प्रोड्यूसर्स को कैपिटल की ज़रूरत होती है और उस कैपिटल को कवर अप करने के लिए उसे काफ़ी सालों तक प्रोडक्शन करना पड़ता है. ठीक है, लेकिन इसके अंदर वो सालों तक चल तो रहे हैं लेकिन उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है. दैट्स वाई नट्स, बोल्ट्स, नेल्स एंड स्क्रूज ऑल्दो दे रन फॉर सेवरल ईयर्स बट दे डू नॉट हैव हाई वैल्यू. दैट्स वाई दे विल नॉट कंसिडर्ड अंडर कैपिटल गुड्स. Thus, only those fixed assets of the producers are taken as capital goods which are used in the process of production for several years and which are of high value. Several years and which are of high value. अगर इस तरह के गुड्स हैं तो ही वो कैपिटल गुड्स कहलाएंगे. गॉट इट? अब कैपिटल गुड्स हैं, अगर हर साल वो यूज़ हो रहे हैं तो उनमें कुछ डेप्रिसिएशन भी हो रहा होगा, तो डेफिनेटली दे फेसेस डेप्रिसिएशन. और ये होता क्या है? ये लॉस ऑफ वैल्यू होती है फिक्स्ड एसेट्स की. जैसे आज हमने मशीनरी ख़रीदी है तो अगर नेक्स्ट ईयर हम उसे बेचेंगे तो ऑब्वियसली हमें उतना रेट नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा. ये इस वजह से होता है कि जब हमने उसे यूज़ किया तो उस टाइम पे कुछ वियर एंड टीयर हुए, उसके यूजेस की वजह से उसकी वैल्यू में जो डाउनफॉल आता है उसे हम डेप्रिसिएशन के स्लॉट में मेज़र करते हैं. तो कैपिटल गुड्स क्या हैं? कैपिटल गुड्स फिक्स्ड एसेट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स के, हाई वैल्यू के होते हैं और सेवरल ईयर्स तक चलते हैं. क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? कैपिटल गुड्स फिक्स्ड एसेट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स के, दे एक्चुअली यूज फॉर सेवरल ईयर्स. फिक्स्ड एसेट्स यूज फॉर several years and are of high value. Got it? And they also leads to depreciation, and example are this. So 5 things you have to focus on this. Yes, one question definitely frequently being asked, or it is very important to know the concept that all capital goods are producer goods. Got it? All capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते. तो इसको समझने के लिए हम ये देखेंगे कि प्रोड्यूसर गुड्स होते कौन कौन से हैं. प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं, प्रोड्यूसर क्या क्या यूज़ करता है. सबसे पहले तो वो प्लांट एंड मशीनरी की ज़रूरत होती है उसको, और उन प्लांट एंड मशीनरी से फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत भी होती है. जैसे फर्नीचर बनाना है तो वो फर्नीचर के लिए उसे वुड भी चाहिए और प्लांट एंड मशीनरी की भी ज़रूरत है. अब वुड क्योंकि फर्नीचर बन गया तो वो रिपीटेडली यूज़ नहीं होगी, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी फर्दर प्रोडक्शन में सेवरल ईयर्स तक यूज़ होंगे. दैट्स वाई प्रोड्यूसर गुड्स तो दोनों ही हैं, लेकिन वुड एज अ रॉ मटेरियल विल नॉट बी कैपिटल गुड, एंड ऑल कैपिटल गुड्स मस्ट बी प्रोड्यूसर गुड, क्योंकि वो तो प्रोड्यूसर गुड हैं ही, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड्स नहीं होते. उसका एग्जांपल है रॉ मटेरियल. इसका एग्जांपल आपको सिंपल सा याद रखना है, रॉ मटेरियल. सिंपल एग्जांपल जैसे वुड का है कि वुड प्रोड्यूसर गुड्स अगर 2 हैं, जैसे रॉ मटेरियल भी चाहिए प्रोड्यूसर को और प्लांट एंड मशीनरी भी, तो प्लांट एंड मशीनरी तो सेवरल ईयर्स तक यूज़ होगी, तो इसलिए कैपिटल गुड्स में आ रही है और वो प्रोड्यूसर गुड भी है. लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स में एक और चीज़ आती है रॉ मटेरियल. तो क्या वो नेक्स्ट काफ़ी साल तक यूज चलती है? क्या एक वुड से हम बार बार फर्नीचर बना सकते हैं? सेम वुड से हम नहीं बना सकते. इसीलिए वो जो वुड एज अ रॉ मटेरियल है विल नॉट बी कैपिटल गुड, बट इट इज़ प्रोड्यूसर गुड.
Got it? So all capital goods are producer goods like plant and machinery, but all producer goods are not capital goods like raw material. You read this paragraph, you will be able to understand it. On the next page, the difference has been given, consumption goods and capital goods. So let's revise. Consumption goods lead to direct satisfaction of human wants. Capital goods do not lead to direct satisfaction of human wants. These goods are consumed by household when purchased. These are not consumed by household. Instead, they are used by producers for further production. हम कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं, इसके अंदर आप रॉ मटेरियल्स को ध्यान में मत रखना, ये कैपिटल गुड्स की बात हो रही है. तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि प्रोड्यूसर जो कि हाउस होल्ड्स कंज्यूम करने के लिए परचेज नहीं करते हैं, प्रोड्यूसर्स फर्दर प्रोडक्शन के लिए करते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी. एक्सपेंडिचर जो होता है कंजम्पशन गुड्स पे, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंडर आता है, और एक्सपेंडिचर जो कैपिटल गुड्स पे होता है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए आता है. पीछे आया भी है. टोटल अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो C+I. तो C क्या हो गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. I हो गया मतलब एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर्स या हाउस होल्ड्स कर रहे हैं वो तो हो गया C, दैट इज़ कंजम्पशन. एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो कि प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं कैपिटल गुड्स पे, वो उनका इन्वेस्टमेंट है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. टोटल एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर. तो ये टॉपिक तो नेशनल इनकम में जब आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर कर देंगे. बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कंजम्पशन गुड्स पे होने वाला खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, और कैपिटल गुड्स पे होने वाला खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जिससे प्रोड्यूसर करते हैं. हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लेड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल. इट रेजेज देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. उनके, और वो कब अफोर्ड कर पाएंगे? जब उनकी इनकम ज़्यादा होगी. जब ज़्यादा इनकम होगी तो वो ज़्यादा कंजम्पशन पे खर्च करेंगे, और उनका क्या इम्प्रूव होगा? क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी. और हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर हायर प्रोडक्शन हम कैपिटल गुड्स का करते हैं तो उससे क्या होगा? हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इकोनॉमी की बढ़ेगी, जो कि हमारी जीडीपी ग्रोथ की बैकबोन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बैकबोन है. अगर हम ज़्यादा हमारे पास कैपिटल गुड्स होंगे तो हम ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे, हम ज़्यादा, हमारा जो जीडीपी है वो इंक्रीज़ होगा. और अगर हम प्रोडक्शन कंजम्पशन गुड्स का करते हैं कि एक इकनॉमी में अगर कंजम्पशन गुड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो क्या होगा? वो क्वालिटी रेस करेगा वहाँ की सोसाइटी की. गॉट इट? Now, one note is given. Both consumption goods and capital goods have one common characteristic, that are final goods and therefore included in the estimation of national income. हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, फाइनल गुड्स होते हैं. गॉट इट? और कैपिटल कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स के डिफरेंस में कॉमन पॉइंट क्या है कि ये दोनों ही, कंजम्पशन गुड भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में यूज़ होता है, और कैपिटल गुड्स भी नेशनल इनकम की मेजरमेंट में कैलकुलेशन में इंक्लूड होंगे. दे बोथ विल इंक्लूड. ये फोकस पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है. ठीक है? ये फाइनल गुड्स होते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम में मेजरमेंट उन्हीं चीज़ों का होगा जो कि फाइनल है, और इंटरमीडिएट फाइनल नहीं है, इसलिए इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है? नाउ ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नाउ कैपिटल गुड्स. नाउ यू नो दिस आंसर. वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट.